Hey guys, what's up? Kya chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. Hope you're doing good. And welcome to my rapid practice session today, जहाँ पे अपने प्रैक्टिस करने वाले हैं TDS, TCS एंड ई-वेबल के कुछ क्वेश्चंस जो कि इंस्टीट्यूट के मैट से है और जो कि इंस्टीट्यूट ने पास्ट टर्म पेपर्स में पूछा था। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट needless to mention, you have to subscribe this channel, press the bell icon button, and also share this video with all your friends so that they can also come to know about all this content. तो चलो सबसे पहले अपने ई वेबल का क्वेश्चंस देखते हैं कि ई वेबल से किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स रिगार्डिंग ई वेबल अंडर द रेलिवेंट जीएसटी रूल्स। कंसोलिडेटेड ई वेबल इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, कंसोलिडेटेड ई वेबल इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ई वेबल। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कंसोलिडेटेड ई वेबल इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो कंसोलिडेट e-waybill is a single document containing the details of multiple e-waybills in respect of multiple consignments of various consignors and consignees being transported in a single vehicle or conveyance generated by the transporter to carry a single document instead of carrying separate documents। क्या होता है इंडिविजुअल e-waybills के वजह से इंस्टेड you can carry one consolidated e-waybill containing the details of multiple e-waybills in respect of multiple consignments of various consignors and consignees। ठीक है, and instead of carrying multiple e-waybills, you just have to carry a single document instead of carrying separate documents for each consignment in the conveyance। आपके एग्जाम में आ सकता है कि बताओ कंसोलिडेटेड ई-वेबिल क्या होता है। Acceptance or rejection of e-waybill. The details of e-waybill generated is communicated to the recipient, where the information in Part A of EWB1 is furnished by the recipient, transporter, or recipient, where the information in Part A is furnished by the supplier, who shall communicate his acceptance or rejection. If such person does not communicate the acceptance within 72 hours, अगर आप अपने acceptance या rejection को 72 hours में communicate नहीं कर देते, then it will be deemed that he has accepted the details। ठीक है, तो आपकी जो वेबल है उसकी जो डिटेल्स है ये आपको आपके सप्लायर को चला जाएगा, आपके रेसिपिएंट को चला जाएगा, हु शैल कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कवर्ड बाय द वेबल। नेक्स्ट अपन आते हैं यश एंड कंपनी, अ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ प्लास्टिक गुड्स registered under GST in the state of Maharashtra. Yash and company sold plastic goods to retail seller in Punjab at a value of 43,000 excluding GST leviable at the rate of 18%. Now it wants to send the consignment of plastic goods to the retail seller in Punjab। अपने को consignment value check करना है, क्या consignment value 50,000 क्रॉस कर रहा है, and this consignment value has to be checked जो होगा ये including taxes होगा। तो 43,000 जो है इस पे आप टैक्स ऐड कर देंगे, विच इज 50,740। तो ये जो आ रहा है ये 50,000 से ज्यादा आ रहा है। E-waybill is mandatory required to be generated where there is a movement of goods of the consignment value exceeding 50,000 in relation to supply. Consignment value of the goods inter alia includes all the taxes charged in the GST. The consignment value of the goods in this case is 50,740, 43,000 plus 43,000 ka taxes. Thus, in the given case, since the movement of the goods is in relation to supply of goods and the consignment value exceeds 50,000, E-waybill is mandatory required to be generated in respect of movement of the goods from Maharashtra to Punjab. ई-वेबल इज मैंडेटरी। ठीक है, ई-वेबल यहां पे क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं जनवरी 21 में न्यू सिलेबस में पूछा गया था अग्नि लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर, अग्नि लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर विशेस टू ट्रांसपोर्ट कार्गो बाय रोड बिटवीन टू सिटीज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 368 किलोमीटर्स। ठीक है, कैलकुलेट द वैलिडिटी ऑफ ई-वेबल अंडर रूल 138 सब रूल 10 फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्गो इफ इट इज ओवर डायमेंशनल कार्गो। ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए अपने पढ़े थे अप टू 20 किलोमीटर्स वन डे। ठीक है, तो यहाँ पे 368 किलोमीटर्स है सर, कितना, तो 368 किलोमीटर्स है, तो यहाँ पर आपका 18.4 हो गया। तो यहाँ पे 18 किलोमीटर इंटू 18 किलोमीटर इंटू 20 डेज। ठीक है, सॉरी 20 किलोमीटर इंटू 18 डेज विच इज 360, और जो
नेक्स्ट 8 किलोमीटर है, इसके ऊपर 1 एक्स्ट्रा डे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 18 डे तो है प्लस 1 एक्स्ट्रा डे हो जाएगा विच इज 19 डेज के लिए आपका ये वैलिडिटी रहेगा इफ इट इज ओवर डायमेंशनल कार्गो। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वेबल इज 1 डे फ्रॉम relevant date up to 20 kilometers and 1 additional day for every 20 kilometer or part thereafter. Thus the validity in the given case is 1 day plus 18 days. But if it is a cargo other than over dimensional cargo तो अपने क्या करेंगे, तो सर यहाँ पे 200 किलोमीटर्स जो है हर 200 किलोमीटर्स पे एक एक दिन होगा। तो 200 200, ठीक है, पहले सर 100 तो था, अब 200 हो गया है। तो एवरी 200 पे 1 किलोमीटर है, तो फर्स्ट 200 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 200 तक 1 डे है, up to 200 किलोमीटर, up to 200 किलोमीटर 1 डे, नेक्स्ट 200 और पार्ट देयर आफ्टर 1 डे, तो यहाँ पे 2 डे हो जाएगा आपका वे बिल की टोटल वैलिडिटी, ठीक है। 1 एडिशनल डे फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर आफ्टर, तो 1 एडिशनल डे हो गया, दैट इज आपका 2 डे हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका ई वे बिल का क्वेश्चन आ गया। जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस वे बिल से आते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, इट इज मैंडेटरी टू फर्निश डिटेल्स ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी। कुछ याद आ रहा है 50 किलोमीटर वाला प्रोविजन? यस सर, 50 किलोमीटर वाला प्रोविजन याद आ रहा है। वहां पे आपको वेबिल में पार्ट बी में कन्वेंस डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है। कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द अबव स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ ई वेबल। द गिवन स्टेटमेंट इज पार्शियली वैलिड and e-waybill is valid for the movement of the goods by the road only when the part B is furnished, including the details of conveyance. Where the details of conveyance may not be furnished in part B of the waybill, where the goods transported up to for a distance up to 50 kilometers within the state from the place of business of the consigner to the place of business of the transporter, or from the place of business of the transporter finally to the place of business of the consignee, ठीक है। तो कंसाइनर के प्लेस से ट्रांसपोर्टर तक एंड ट्रांसपोर्टर के प्लेस से कंसाइनी तक, कंसाइनर के प्लेस से ट्रांसपोर्टर तक और ट्रांसपोर्टर के प्लेस से कंसाइनी तक। तो कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर के प्लेस तक जो भी आपका डिस्टेंस है, अगर वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है तो आपको वेबिल मैंडेटरी नहीं है। और ट्रांसपोर्टर से आपका जो कंसाइनी तक का है वहाँ पे 50 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तभी आपका जो कन्वेंस डिटेल्स है दे मे नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी, ठीक है सर। Discuss the correctness of the above statement. Once generated, e-waybill cannot be cancelled. No, this statement is partially correct, partially not. When an e-waybill is generated but goods are not transported as per the details, then it can be cancelled within 24 hours from the generation of e-waybill. However, e-waybill cannot be cancelled once it has been physically verified in transit by the proper ऑफिसर। मतलब फिजिकली वेरीफाई हो गया तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, वरना आप नॉर्मली 24 आवर्स में कर सकते हैं। ई वेबिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन अनदर स्टेट? ऑब्वियसली यस। ई वेबिल जो भी आप जनरेट कर रहे हो SGST एक्ट में, दैट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया। द सेट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द ई वेबिल जनरेटेड अंडर GST रूल्स ऑफ एनी स्टेट शैल बी वैलिड इन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है सर। तो ये GST-1 के सवाल थे। GST-1 के सवाल अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। पेनल्टी से, लेट फीस से बहुत सवाल पूछा गया है, रिटर्न से भी बहुत क्वेश्चंस पूछा गया है पहले। वेबिल से जनरली एक स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस आते हैं, वैलिडिटी हो गया, ब्लॉकिंग ऑफ ई वेबिल हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस आपके ई वेबिल वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं गाइस, ओके। दैट्स ऑल फ्रॉम वेबिल फ्रॉम माय पास्ट टर्म पेपर्स। अब एक बार इंस्टीट्यूट के मैट में आ जाते हैं, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट के मैट में आ जाते हैं। बहुत सारे सवाल अपने लास्ट क्लास ही कर लिए थे। Just give me a minute. So now we are going to focus on the MCQ part, which is there in your institute study material. Let's go through it. What is the rate of TDS? What is the rate of TDS? भाई ये क्या सवाल पूछ रहा है, what is the rate of TDS? क्या आपको पता है what is the rate of TDS? Actually सर 2% है rate of TDS, ठीक है। एक तो आपका CGST में 1% है और SGST में है 1%, ठीक है। तो 2% हो गया आपका CGST का रेट एंड SGST का रेट है 1%। तो 14518, तो अपने 1 बोल सकते हैं। CGST का रेट पूछा होगा तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। ऑन व्हाट वैल्यू TDS नीड्स टू बी डिडक्टेड? ऑन व्हाट वैल्यू TDS नीड्स टू बी डिडक्टेड? TDS किस वैल्यू पे कटेगा? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स,
कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स, कि इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो सर यहाँ पर अपने डिस्कस किए थे कि जब टीडीएस डिडक्ट होता है तो वो टैक्सेबल सप्लाई के वैल्यू, जो आपका टैक्सेबल वैल्यू है, उस पर डिडक्ट होता है, जिसपे जीएसटी इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है ना, जिसपे जीएसटी इंक्लूडेड नहीं होता। एक्सक्लूडिंग टैक्स आपको वैल्यू देखना पड़ता है। तो एक्सक्लूडिंग टैक्स इनवॉइस वैल्यू, जिसमें जीएसटी वाला पार्ट आप एक्सक्लूड कर दो, उसमें जो भी आपका कंपोनेंट रहेगा उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टीडीएस? 10 days from the end of the month. Within 10 days of the subsequent month आपका ड्यू डेट होगा फॉर पेमेंट ऑफ टीडीएस। What is the due date for issue of TDS certificate? वैसे मैं बता देता हूँ, ये प्रोविजन डिलीट हो चुका है, बट एनीवेज इसकी आंसर थी विदिन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। तो टीसीएस का जो सर्टिफिकेट, टीडीएस का जो सर्टिफिकेट है, जो जीएसटीआर 7 है, अब अपने पहले पढ़ते थे, अब वो जीएसटीआर 2 में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका विदिन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ टीडीएस, ठीक है, विच इज बेसिकली 15th। 10th आपका हो गया ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और 15th हो गया आपका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस से आपका टीडीएस सर्टिफिकेट। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51 शैल फर्निश रिटर्न इन डैश फॉर द मंथ इन विच डिडक्शन हैज बीन मेड विद इन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस शैल फर्निश रिटर्न, उसे रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा किस फॉर्म में? जीएसटीआर 7 में, ठीक है, जीएसटीआर 7 में उसको रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा। व्हाट इज ई कॉमर्स? Supply of goods and services on an electronic platform for commerce other than the e-commerce operator himself. Supply of goods and services on an economic platform for commerce including the e-commerce operator. Supply of goods and or services on an electronic platform for commerce. Supply of goods or services of both including digital products over digital or electronic network. This will be the correct answer. Option number D. A person who dash digital or इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स शैल बी कंसिडर्ड एज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। बेसिकली सब लोग, ओन्स ऑपरेट्स मैनेजेस, ठीक है, एनी ओन्स ऑपरेट्स मैनेजेस, जो ओन करता है, ऑपरेट करता है या मैनेज करता है इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी, प्लेटफॉर्म, डिजिटल फैसिलिटी फॉर ई कॉमर्स, दे विल बी कंसिडर्ड टू बी ई कॉमर्स ऑपरेटर। एट वॉट रेट शुड द टैक्स बी कलेक्टेड एट सोर्स? किस रेट पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, किस रेट पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना है? तो अपने को पता है बेटा, टीसीएस अपने 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, इस रेट पे अपने टीसीएस कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इज देयर एनी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर अप्लाइंग प्रोविजन ऑफ 52 फॉर कलेक्टिंग टीसीएस? Tax should always be collected at source if the conditions envisaged under section 52 are met. No such limit is prescribed. कोई threshold limit नहीं है। When will section 52 apply? ठीक है, when will section 52 apply? section 52 कब अप्लाई करेंगे आप? section 52 कब अप्लाई करेंगे? और when should the e-commerce operator be liable to collect TCS? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन द नेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू इट बाय अदर सप्लायर वेयर द कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू सच सप्लाईज टू बी कलेक्टेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट बाद बाकी भी चेक कर सकते हैं। शैल कलेक्ट टीसीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सप्लाईज मेड थ्रू इट। शैल कलेक्ट टीसीएस ओनली इफ द सप्लायर इज ऑफ गुड्स इज रजिस्टर्ड। नहीं सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल कलेक्ट टीसीएस ऑन द नेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू इट by other supplier where the consideration is collected by the e-commerce operator. Correct answer is option number C. Every e-commerce operator required to collect tax at source under 52 shall furnish a statement in dash containing details of supplies affected through the operator and amount of tax collected as required under section 52. तो हर एक e-commerce operator को जो है वो GST में उसको statement फाइल करना पड़ेगा। किस फॉर्म में? GSTR 8 में, ठीक है, GSTR 8 में उसको फाइल करना पड़ेगा सर, अंडर सेक्शन 52। when should the e-commerce operator collect tax at source? When should the e-commerce operator collect tax at source? When he collects the consideration on behalf of the supplier in respect of such supply on the date when the other supplier makes supply through the operator, day on which the operator remits the consideration to the supplier, option A or B whichever is earlier. तो बेसिकली क्या है, कंसिडरेशन जब आप कलेक्ट कर लिए on the day when the other suppliers make supplies through operator, day on which operator remits the consideration to the supplier। तो उसमें 3 लिमिट्स यहाँ पर आ गया है। When he collects the consideration on behalf of the supplier in respect of the supplier, जब e-commerce operator collect कर लिया on the date when the other suppliers make supplies through the operator, या तो supplier ने supply कर दिया, day on which the operator remits the consideration to the supplier, option A or B whichever is earlier, option A or B whichever is later। तो यहाँ पे जब TCS आप collect करते हो, you basically collect when the consideration is there collected by the e-commerce operator।
When should the e-commerce operator remit the amount of TCS to the government and file the necessary returns? तो सर यहाँ पर उसको 10 days के अंदर अंदर from the end of the month in which the amount was collected, जिस मंथ में अमाउंट कलेक्ट हुआ है उसके मंथ के एंड में आ जाइए, वहां से 10 डेज के अंदर अंदर आपको अपना TCS अमाउंट रिमिट करना पड़ेगा. व्हेन कैन अ सप्लायर मेकिंग सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट टू ऑप्ट नॉट टू रजिस्टर? जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, कब वो रजिस्टर नहीं करेगा? ऑलवेज कि when the e-commerce operator is not required to collect tax at source under section 52, when the supplier doesn't cross the threshold limit specified under section 22, option B and C cumulatively fulfilled. तो यहाँ पे अब एक साथ समझो गाइस. When can a supplier making supplies through e-commerce operator, when can a supplier making supplies through e-commerce operator opt not to register? वो opt करेगा कि वो register नहीं करेगा. कब? When the e-commerce operator is not required to be collect at source, when the supplier doesn't cross the threshold limit specified under section 22. तो सर जब सप्लायर सप्लाई कर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ही मे नॉट ऑप्ट टू रजिस्टर, ठीक है. व्हेन सप्लायर डजंट क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 22, व्हेन द ई कॉमर्स ऑपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS अंडर सेक्शन 52. तो ठीक है, जब सप्लायर का लिमिट ही थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ तो वहां पर उसको बेसिकली रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं. ही मे ऑप्ट नॉट टू रजिस्टर, ठीक है, ही मे ऑप्ट नॉट टू register. Or when the e-commerce operator is not. The answer is option B and C cumulatively fulfilled. When can a e-commerce operator is required to register under GST? When is required to collect tax at source under section 52. When is aggregate turnover so matter नहीं करता. It is mandatory to register irrespective of the threshold limit. When is required to collect tax at source under section 52 and his aggregate turnover exceeds the threshold limit. ठीक है सर. बेसिकली व्हेन इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, तो उसको बेसिकली ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्टर लेना पड़ता है. यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है सर. नेक्स्ट अपन आते हैं ई वेबिल पे. ई वेबिल के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर सॉल्व करते हैं. Which document is to be issued by the consignor instead of tax invoice for transportation of goods for job work? ध्यान से देखना. Which document is to be issued? Which document is to be issued by the job worker? Which document is to be issued by the consignor instead of the tax invoice for transportation of goods for job work? ई वेबल इशू करेगा कि डिलीवरी चलान इशू करेगा कि डेबिट नोट इशू करेगा कि रिसिट वाउचर इशू करेगा? सर अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क हो रहा है तो एज पर रूल 55 अपने पढ़े थे, डिलीवरी चलान विच बी इशूड फॉर purpose of movement of goods. In case proper officer checks the goods in movement, then what document shall be required apart from delivery challan to satisfy the proper officer whether the goods of the value exceeds 50,000? तो यहाँ पे उसको मूवमेंट चेक करने के हिसाब से उसको क्या चेक करना पड़ेगा? व्हाट अपार्ट फ्रॉम डिलीवरी चलान व्हाट डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड इफ द कंसाइनमेंट विल एक्सीड 50,000 इज ई वे बिल. व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय एन अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर फॉर गेटिंग एनरोल्ड अंडर ई-वे बिल, फॉर गेटिंग एनरोल्ड अंडर ई-वे बिल सिस्टम? एक अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए अगर उसको ई-वे बिल सिस्टम में एनरोलमेंट कराना है? एक इनकम टैक्स पैन और उसका आधार डिटेल्स ऑफ एनी ऑफ हिज डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर और एम्प्लॉय. तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. द वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल विल बी सेट टू इनिशिएट व्हेन पार्ट बी इज कंप्लीटली फिल्ड, कि पार्ट ए इज कंप्लीटली फिल्ड, फिर बोथ पार्ट्स आर फिल्ड कंप्लीटली. तो 4 option C is the correct answer. Can the validity of e-waybill validity of an expired e-waybill extended? The answer is no. ये possible नहीं है सर. लेकिन अगर आपका ध्यान से expired e-waybill मतलब वो validity खत्म हो चुकी है, उसकी validity खत्म हो चुकी है, तो इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट ने कुछ पावर दिया है कुछ कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल नेचर के पावर्स में. इन केस सच केसेस आपकी जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड की जा सकती है, स्पेशली इन द केस ऑफ ट्रांसशिपमेंट. व्हाट शैल बी द वैलिडिटी ऑफ ई-वेबल इन केस ऑफ व्हीकल्स अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो 1 डे पर 20 किलो. अच्छा, ओवर डायमेंशनल कार्गो अदर देन है तो ये 1 डे पर 200 किलोमीटर होगा. 6 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ पार्ट ए इन ई-वेबल?
basically upload useful for temporary storing the document details on the Waybill portal, useful for uploading details of transporter की details तो पार्ट बी में जाती है, पार्ट ए बेसिकली इनवॉइस के डिटेल्स जाते हैं, दैट इज स्टोरिंग द डॉक्यूमेंट डिटेल्स. Amar generated e-waybill at 0010 hours on 16th of September. What shall be when shall be first day be considered to end एंड कब माना जाएगा वैलिडिटी के लिए? तो 16 तो पूरा चला गया सर. 17 सितंबर जो आपका मिडनाइट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द एंड. जो आपका 17th मिडनाइट से मतलब 24 आवर्स में आप इसका फर्स्ट डे एंड मानेंगे. In a typical bill to ship to model of supply, there are three persons involved in a transaction. जैसे A instruct किया B को to deliver it to C. Ram is the person who has ordered Rahim. Ram is the person who has ordered Rahim to send goods directly to Robert. ठीक है. Rahim is the person who's sending the goods directly to the Robert on behalf of Ram. Robert is the recipient of the goods. In this complete scenario, two supplies are involved and accordingly two tax invoices are required to be issued. Two tax invoices are required to be issued. Invoice 1, which should be issued by Rahim to Ram. ठीक है. Invoice 2, which should be issued by Ram to Robert. How many e-waybills will be required to be issued? यहाँ पर एक e-waybill ही चाहिए होगा सर. यहाँ पर राम एक ही वेबिल इशू करेगा, रहीम एक ही वेबिल इशू करेगा रॉबर्ट के नाम पर, जहाँ पे वो बिल टू करेगा किसको? ए, एंड शिप टू करेगा किसको? सी. ठीक है. शिपिंग एड्रेस बिलिंग एड्रेस अलग दे देगा. ई वेबिल जनरेशन फैसिलिटी ऑफ अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम विल बी ब्लॉक्ड इफ ही हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न्स फॉर अ कंसेक्यूटिव पीरियड. सर अगर उसने पिछले कितने मंथ्स के रिटर्न्स उसने फाइल नहीं किया जिसके वजह से आप उसका वेबिल फीचर ब्लॉक कर दोगे. तो करेक्ट आंसर इज 2 टैक्स पीरियड्स. अगर उसने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसका वेबिल फीचर को ब्लॉक कर दोगे सर. ठीक है. अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, यू कैन जस्ट चेक इट वंस. With reference to the provisions relating to e-waybill as prescribed under GST laws, answer to the following questions. Sandhu Toys manufacturers registered in Punjab sold electronic toys to a retail seller in Gujarat at a value of 48,000 excluding GST. तो इसमें GST ऐड करेंगे तो 50,000 का लिमिट क्रॉस हो जाएगा. Now it wants you to send the consignment. Now it wants to send the consignment of toys to the retail seller. You are required to advise for the following issues. Whether e-waybill is mandatory, the answer is yes. If yes, who is required to generate the e-waybill? Who is actually causing the movement of the goods? And who is causing the movement of the goods? Sandhu Toys manufacturers. ठीक है. Sandhu Toys manufacturers is causing the movement of the goods. तो यहाँ पे since the movement of the goods is there and the consignment value exceeds 50,000, तो e-waybill is mandatory, required to be issued in the given case. ठीक है ना. यहाँ पे e-waybill आपको mandatory issue करना पड़ेगा सर. Okay. Sakti Enterprises, a registered supplier of AC, is required to send from Mumbai a consignment of parts of AC to be replaced under warranty at various client locations in Gujarat. उसको replacement करना था parts का और उसने काफ़ी सारे locations में अपने client के locations में उसने मुंबई से AC part send किया. The value of the consignment declared in the delivery challan accompanying the goods is 70,000. Sakti claims that since the movement to Gujarat is caused due to reasons other than supply, e-waybill is not mandatory. बिल्कुल mandatory है सर. e-waybill बिल्कुल mandatory. यहाँ पे अपने reasons quote कर देंगे. When the goods are transported by railways, air or vessel, the e-waybill shall be generated by the registered person being the supplier who shall either before this. यहाँ पे अपने को basically यही बोलना पड़ेगा. Goods to be moved to another state for replacement. This will be covered in the ambit of delivery e-waybill, and in these three cases in relation to supply या other than supply or inward supply from unregistered person, the relevant registered person should definitely generate an e-waybill before the commencement of the movement. In this case, CBSE has clarified that even if the movement is caused due to reasons other than supply, including replacement of goods, e-waybill is required to be issued. Thus, in the given case, since the consignment value exceeds 50,000, e-waybill is required to be mandatory generated. Therefore, the claim of Sakti Enterprises that e-waybill is not mandatory required to be generated as the movement of the goods is caused due to the reasons other than supply is not correct. ठीक है. इस तरह के केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में गाइस पूछे जा सकते हैं. ठीक है.
Then last question. Lovely and Lovely Limited has multiple wholesale outlets of cosmetic products in Chennai, Tamil Nadu. Multiple wholesale outlets है चेन्नई में भी तमिलनाडु में. It receives an order for cosmetics worth rupees 1,20,000 inclusive of GST at the rate of 18% from Reena. Lovely and Lovely has multiple wholesale outlets of cosmetic products in Chennai, Tamil Nadu. उन्होंने order receive किया for cosmetics worth rupees 1,20,000 including GST leviable at the rate of 18%. किससे? रीना से ऑर्डर रिसीव किया, ओनर ऑफ अ रिटेल कॉस्मेटिक स्टोर इन दिल्ली. वाइल चेकिंग द स्टॉक इट इज फाउंड दैट ऑर्डर वर्थ रुपीज 55,000 कैन बी फुलफिल्ड फ्रॉम द कंपनीज चेन्नई स्टोर. ठीक है, एंड रिमेनिंग वर्थ रुपीज 65,000 कैन बी सेंट फ्रॉम इट्स चेन्नई स्टोर. ठीक है, बोथ द स्टोर्स आर बेसिकली माइलापुर चेन्नई स्टोर एंड एक है नुंगपक्कम चेन्नई स्टोर. बोथ द स्टोर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू इशू सेपरेट इनवॉइसेस फॉर द गुड्स सेंट टू रीना. The goods are transported to Reena in Delhi in a single conveyance owned by Priya Transporters. You are required to advise Lovely with respect to the issuance of e-way bill. तो देखो यहाँ पर सिंपल है गाइस, लवली ने मल्टीपल आउटलेट्स है और लवली ने एक ऑर्डर रिसीव किया, उसको 1,20,000 का कॉस्मेटिक सप्लाई करना है. ठीक है, रीना को. तो उसने क्या किया, 55,000 तो अपने चेन्नई वाले स्टोर से सप्लाई करवा दिया और रिमेनिंग 65,000 जो है उसने अपने चेन्नई में नुंगपम स्टोर से सप्लाई करवा दिया. दो अलग अलग. बोथ द स्टोर्स ने सेपरेट इनवॉइसेस इशू किया फॉर द गुड्स सेंट टू रीना और गुड्स दिल्ली में ट्रांसपोर्ट हो गया इन अ सिंगल कन्वेंस बाय प्रिया ट्रांसपोर्टर्स. तो यहां पर ई वे बिल आप कैसे इशू करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहां पर गाइज अपने क्या कर सकते हैं, वन कंसोलिडेटेड ई वे बिल इशू किया जा सकता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस. पहले आप ये बोलोगे कि देयर विल बी टू सेपरेट ई वे बिल सिंस ईच देयर आर टू सेपरेट invoices. For each invoice value there will be two separate e-bills because every consignment value is more than 50,000. अब देखो यहाँ पे हर एक consignment की जो value है वो 50,000 से ज़्यादा है. 65 और 55 दोनों 60,000 से 50,000 से ज़्यादा और दोनों inclusive of GST है. ठीक है, तो यहां पर अपने को ये बताना पड़ेगा that there are two separate invoice e-bills since in each invoice value is more than 50,000 and it is considered as one consignment for the purpose of generating e-bill. As per the clarification issued by CBIC, it clarifies that if multiple invoices are issued by the supplier to one recipient, that is for movement of goods for more than one invoice of the same consignor, multiple e-way bills have to be generated. In other words, for each invoice, one e-way bill has to be generated, irrespective whether the same or different consignors or consignees are involved. Multiple invoices cannot be clubbed to generate one e-way bill. अब जो multiple invoices है, आप उसको एक e-way bill में नहीं बना सकते. However, after generating the e-way bill, you can issue one consolidated e-way bill and that can be prepared based on the multiple e-way bills generated for the transportation purpose. मतलब आप दो इनवॉइस से एक वे बिल नहीं बना सकते, आपको दो वे बिल बनाना पड़ेगा. दो वे बिल से आप एक कंसोलिडेटेड वे बिल इशू कर सकते हैं इफ दैट गुड्स आर गोइंग ऑन इन वन व्हीकल. अगर वो गुड्स है वो आपका एक व्हीकल में जा रहा है तो आप उसको कर सकते हो. ठीक है गाइस, तो ये था अपना इलेक्ट्रॉनिक वे बिल के क्वेश्चंस. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. यहाँ से कहीं ना कोई क्वेश्चंस आएगा गाइस. तो आप लोग अगर आपका क्वेश्चंस अगर देखा हुआ रहेगा तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने ये सारा चैप्टर्स किया. तो देखो मैंने बहुत ही आज सिंपल चैप्टर टेकअप किया है, TDS TCS एंड ई वे बिल. तो एक कम टाइम में ये फिनिश हो गया क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत छोटा है, इसलिए टॉपिक्स भी अपने दो चैप्टर एक साथ ले लिए, TDS TCS ई वे बिल, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा. ठीक है ना. सो ये था सर अपना आज का सेशन. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा एंड यू विल बी डेफिनेटली वांटिंग दिस सिमिलर सेशंस. और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो डू कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि आपको ये सेशंस कैसा लगा. लेट मी चेक कि अपना कल का जो सेशन है वो कौन से टॉपिक पर है, वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. अच्छा, कल आप लोग का जो है कल का जो सेशन है, कल अपना सेशन जो है कल आप लोग का जो है कल अपने डिमांड एंड रिकवरी का सेशन रखेंगे गाइस. ठीक है ना. कल अपना जो सेशन होगा डिमांड एंड रिकवरी का सेशन है. इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूँ इंटरमीडिएट के आज के सारे टॉपिक्स ओवर हो चुके हैं. अब कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये पूरा फाइनल लेवल का टॉपिक होगा कल से. आज अपने इंटरमीडिएट के सारे टॉपिक्स को ओवर कर चुके हैं. खाली मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई और रजिस्ट्रेशन का मेरा कुछ बचा हुआ है, वो मैं आपको कराऊंगा इन द कमिंग वीक. बट कल से अपने डिमांड एंड रिकवरी वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे. डिमांड एंड रिकवरी वाला पार्ट अपने स्टार्ट करेंगे और डिमांड एंड रिकवरी से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी अपने कल के सेशन में ही प्रैक्टिस करेंगे.
तो आज आपका जो इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है वो ओवर होता है, और इंटरमीडिएट में अपने जितना टॉपिक्स पढ़े हैं वो अपने फुल्ली पढ़ चुके थे। स्टार्ट किए थे अपने सप्लाई, कॉम्पोजिशन स्कीम, रिवर्स चार्ज, एग्जाम्पशंस, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिटर्न्स, टीडीएस टीसीएस एंड ई वे बिल। ये सारे के सारे एग्जॉस्टिव पोर्शंस थे आपके इंटरमीडिएट में, और यही फाइनल में भी है। फाइनल में कुछ एक्स्ट्रा पोर्शंस है जो अपने कल से स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स इट गाइस, आई होप ये मिशन सेशन आप सबके लिए सक्सेसफुल रहा, और आप लोग डेफिनेटली इस बात को कॉन्ग्निजेंस रखोगे कि जो मिशन मैंने आपको कराया ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल है और बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से करना है, और बस इसी तरह से मन लगा के पढ़ना है। आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू विल डेफिनेटली कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स वन डे। ठीक है ना गाइस? तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से कल, और इसी टाइम पर आप लोग से मुलाकात होगी जहाँ पे अपने और भी बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना गाइस? सो दैट्स इट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून टुमारो। इंटरमीडिएट के बच्चे आप लोग के लिए इनकम टैक्स का सेशन हम लोग नेक्स्ट वीक स्टार्ट करने वाले हैं। 25th या 25th या 26th से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसका जो भी आपको उसका डिटेल्स बता देंगे, उसका डिटेल्स आपको टाइमली बता दिया जाएगा। इफ़ नॉट मे बी 19th या 20th से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे आपका हम पूरा 4 दिन में आपका मैराथन होगा, इनकम टैक्स का मैराथन का 4 पार्ट्स होगा, जहाँ पे अपने अलग अलग ग्रुप्स का मैराथन कंप्लीट करेंगे, जैसे हेड्स ऑफ इनकम, क्लबिंग सेट ऑफ, रेसिडेंशियल स्टेटस, इसको अपने कंबाइन करके फिर अपने सेशंस टेक अप करेंगे गाइस। ठीक है ना? सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच। आई होप दैट यू हैव benefited by this, and definitely you have got lots of confidence after attending today's session. Thank you so much, take care, God bless you, see you very soon in the next class.